If anybody has to write something, you're all on mute. I will have to unmute you. So just go on the chat bot and write it, please. Okay, I hope everybody can see this. So today's topic is protein for brain. Very important topic. Protein, I think, is understood by almost everybody. बहुत ही commonly used word है and increasingly last 2 to 3 years में बहुत ही ज़्यादा common हो गया है amongst adults, especially. So, we will go deeper into understanding what food has protein, why protein, veg protein, non-veg protein, protein for brain, protein especially for neurodiversity. But before we start, let me thank the Tata Power Trust, the Pay Attention Program, NIPID, for organizing these webinars. It is an amazing opportunity for us and you to come together and share this piece of information, which will eventually have a great impact on any child's life. Okay, I'm sure you all are already a part of the WhatsApp group. And if you aren't, if you're joining this for the first time, please join it. If you don't have the group, you can text us on Zoom chat right now, or um, you can go on Ayurved website. You'll see a bot. You can ask us there. We will add you to the WhatsApp group. Okay, first and foremost, what is the impact of protein on neurodiversity? The three main pillars, the most important and most common three main pillars around neurodiversity are brain. So protein is the building block of brain. And I will go deeper in this. मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कितना important और कितना बड़ा percentage brain का is backed by protein. Second is hormones. How does protein help to manage hormones? Neurodiversity, when the hormones can go up and down, and which actually impacts focus, attention span, and ADHD. So that's very important. And lastly, growth and repair, which means that when my child is growing, or when all of us are growing, or when all of us are using our brain or our muscles, they have to rest, they have to grow, they have to recover. And that is where protein plays a crucial part. Okay. Typically, there are five most important roles that protein plays in the body. One I just mentioned, which is around growth and repair. So when you're running, when a child is running, there's a lot of muscle being used there or muscle being formed. And in all that part, whether there is a muscle wear and tear or a muscle growth, both of it needs protein to protect itself. हमारे tissue break होते हैं whenever the body does a lot of motor skills as well. That is where you need protein. Enzymes, you may know this word, I've covered it in the past, that protein will help in enzyme production. And enzyme का रोल होता है, सबसे बड़ा रोल होता है डाइजेशन में. अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो it will result in constipation, leaky gut, or even bad metabolism, which may reflect on either being very, very thin or being obese. Number three, I touched on it, that is the hormonal imbalance. Number four, protein is a beautiful direct source of energy that every child needs, every body needs. And lastly, lack of protein, agar protein kam hoga, it will directly impact the immunity levels in the body. So this is something which is body specific, that protein is needed in these five parts for these five reasons. But why does protein matter for anybody who is neurodiverse or anybody who has autism? There are six main reasons. Number one, which is very common, I hear it very, very often, that children have sensory sensitivities. Well, protein helps to manage that. Children who are neurodiverse, they're picky eaters. And for multiple sensory concerns as well, they have digestion issues. Protein caters to that. Protein also caters to any kind of neuroconnection happening in the brain. It helps to regulate sleep. It builds focus and anxiety. Manage करता है anxiety को, and it's going to build focus. And this will also directly impact your ADHD, the anxiety thing. And lastly, hyperactivity, which we spoke about. So you can see that all these six things, which are very common in any child who is neurodiverse or who has autism, protein has a huge role to play. I think अभी तक हमने जितने भी topics cover करे, I will tell you that protein sounds very easy.
इट इज नॉट टफ टू मैनेज, इट इज अ मिथ कि बहुत टफ होता है प्रोटीन मैनेज करना, बट एट द सेम टाइम इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू मैनेज प्रोटीन बिकॉज ऑफ दीज 6 रीजंस। होता क्या है व्हेन दी प्रोटीन इज लेस इन द बॉडी? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लो प्रोटीन ऑन ऑटिज्म? किसी भी न्यूरोडाइवर्स बच्चे की बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका फोकस ऑन और अटेंशन बहुत कम होगा। इम्पल्स रिएक्शंस बढ़ जाएंगे, जो आप कहते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है, ही विल बी वेरी वेरी इम्पल्सिव। एंड डोपामीन, वी ऑल नो अबाउट डोपामीन, एक्साइटमेंट, द विलिंगनेस टू डू समथिंग, वो होगा नहीं। और आप बोलोगे कुछ भी नहीं सीखता, कुछ भी नहीं करता, एक जगह बैठा रहता है। दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड one reason is low protein in the body. Number two, if you notice कि there is difficulty in learning, difficulty in memorizing, slow process कर रहा है थोड़ा सा, दिखता है कभी कभी बच्चे में कि ही इज लिटिल डल, ये समझ क्यों नहीं रहा चीजों को इतना इजिली, पहले समझ रहा था। वेल, वन very quick reason could be lack of protein in the body. And let me go back to one point कि प्रोटीन विटामिन B12 या विटामिन डी जैसे नहीं होता कि आज खा लिया अब एक हफ्ते बाद देखेंगे या 2 हफ्ते बाद देखेंगे। प्रोटीन इज समथिंग जिसका डेली इंटेक का आपको ध्यान देना पड़ता है, समथिंग लाइक कैल्शियम। नंबर थ्री, मूड एंड इमोशंस। अगर प्रोटीन कम होगा इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एंजाइटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, बहुत इरिटेटेड रहेगा वो। सेरोटोनिन, विच वी ऑल नो इज अ हैप्पी हार्मोन, वो खुश नहीं रहेगा, थोड़ा सा ग्लूमी सा, दुखी सा, अपसेट, एजिटेटेड, एंग्री, वैसी फीलिंग होगी। लास्टली, मोटर कंट्रोल। वेल, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन न्यूरोडाइवर्स चिल्ड्रन, वी से कि मोटर कंट्रोल वीक है। You have to work on the right amount of protein in the body so that they are able to meet their milestones. Okay, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, आई कैन मे बी एक्सप्लेन दैट टू यू। वीक माइलिन, बेसिकली माइलिन इज यूज टू डू मोटर स्किल्स विच एंड माइलिन बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर अगर प्रोटीन सफिशिएंट हो बॉडी में। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो मोटर कंट्रोल बहुत वीक होगा। ओके, नाउ व्हाई इज अ न्यूरोडाइवर्स चाइल्ड प्रोटीन डेफिशिएंट? ये बहुत कॉमन होता है कि बच्चे तो होते हैं डेफिशिएंट, एडल्ट्स भी होते हैं डेफिशिएंट, बट एक न्यूरोडाइवर्स, एक ऑटिस्टिक बच्चा प्रोटीन में डेफिशिएंट क्यों होता है ज्यादा? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो एक चूजी ईटर होता है या पिकी ईटर होता है, या फिर फूड सेंसिटिविटीज होती हैं जिससे उसके ऑप्शंस कम हो जाते हैं। दैट इज वन रीजन। द नेक्स्ट बिग रीजन इज देयर ब्रेन रिक्वायर्स लॉट मोर प्रोटीन देन एनी अदर चाइल्ड, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट पे काम करता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हमने लास्ट टाइम भी करा था जब हम आयरन पे हमने डिस्कशन किया था। व्हाई डज अ चाइल्ड नीड मोर आयरन हु इज न्यूरोडाइवर्स? उसका भी सेम रीजन था। थर्ड, इनका गट थोड़ा सा वीक होता है, इस वजह से प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी इज ऑल्सो लेस। एंड लास्टली, जो खाना इन्हें पसंद है ये वही रिपीट करके खाते हैं। प्रोटीन को लेने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वैरायटी इन फूड, क्योंकि वैरायटी नहीं होती तो प्रोटीन कम जाता है बॉडी में। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग कि एक न्यूरोडाइवर्स बच्चे के लिए प्रोटीन का बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपको मैंने बताई कि वो सारी 6 चीजें, ऑल द 6 कॉमन कंसर्न्स जो आपको एक बच्चे में लगती हैं और आप उसको ठीक करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन से लिंक्ड होती हैं। एक न्यूरोडाइवर्स बच्चा किसी भी और बच्चे से 50% लेस प्रोटीन कंज्यूम करता है, वेयर एज उन सबका ब्रेन, 90% ऑफ द ब्रेन केमिकल्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। अब आप ये देखिए कि 90% ऑफ द ब्रेन केमिकल को प्रोटीन चाहिए, प्लस इस बच्चे को और ज्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि इसका ब्रेन बहुत ज्यादा लेवल, हायर लेवल पे प्रोसेस कर रहा है चीजों को। देयर इज अ लॉट मोर एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द ब्रेन। Thirdly, something very important, that protein is a precursor. Protein helps to form melatonin and serotonin. You don't have to remember these names, but melatonin and serotonin ये वो chemicals हैं जो एक बच्चे को calm, happy, उसकी anxiety को कम रखते हैं। तो प्रोटीन इनको enable करता है बॉडी में। ऐसे बहुत कम फूड्स होते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी शायद स्लीप वाले सेशन में बताया था, ऐसे बहुत कम फूड्स होते हैं जिनके थ्रू आपको डायरेक्टली मेलाटोनिन मिल जाए। तो ये प्रोटीन, ये एक इसको फॉर्म करने में हेल्प करता है बॉडी में। अगर प्रोटीन कम होगा तो ये कम फॉर्म करेंगे और आपको बच्चा बहुत ज्यादा एंशियस और डिस्टर्ब्ड लगेगा। Okay, before I move on, I want to ask this question. So 90% of brain chemicals are made of what?
Fat, protein, or carbs? You can write in the chat. Okay. Yeah. Yes. So please remember this. Now you will know why protein is so important. And it is a building block, not just for the body, but definitely for the brain. Okay, a very interesting slide here. How do you identify? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है? So there are some 6 high level things that I've written here. If you feel कि बच्चे का attention ठीक नहीं है, focus ठीक नहीं है, और ये आप gradually notice कर रहे हो कि थोड़े टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसका attention focus थोड़ा हिला हुआ है, चीजों को जल्दी समझ नहीं रहा, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ रही है, सो नहीं पा रहा ठीक से, his sleep is extremely disturbed, बार बार बीमार पड़ रहा है, उसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या तो कॉन्स्टिपेशन है या लीकी गट है, और उसको शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, एंड लास्टली उसके माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे, मोटर स्किल्स उसकी अचीव नहीं हो रही, प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोटीन इनटेक। ऐसा भी हो सकता है ये चीजें शुरू से ही उसने उसकी ये सारी चीजें शुरू से ही इम्पैक्टेड रही हो, तो भी other than working with therapy, if you start looking at the nutrition side and start focusing a lot on protein, बहुत सारी ये चीजें along with therapy, along with a lot of things that you do, you will see very good results. Okay, now ये कुछ hacks हैं कि कि बच्चा पिकी ईटर है, वो लिमिटेड चीजें खा रहा है, तो व्हाट डू आई डू, व्हाट आर सम हैक्स जिससे प्रोटीन ज्यादा एब्जॉर्ब हो बॉडी में? तो कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं फूड के, फॉर एग्जांपल ग्रेन, जैसे आटा या कोई भी और ग्रेन हो सकता है, और लेज्यूम मतलब राजमा, कोई भी बीन, राजमा हो गया, दालें भी होती हैं जैसे होल चने की दाल हो गई, छोला हो गया, सोया हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। एंड आई थिंक इफ यू लुक एट आवर वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स, हम जिस तरह से फूड्स को कंबाइन करके खाते आए हैं, दाल चावल, या हम लोग राजमा खा रहे हैं रोटी के साथ, या आप दाल खा रहे हो रोटी के साथ, all these are connections which are called complete protein connection, complete protein meals. So there, this is a hack. If you give, you know कोई भी ग्रेन, किसी भी दाल या राजमा, छोला, चना, बहुत वैरायटी आती है, then you will see कि the protein intake is way higher. सेकेंड, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी टच्ड ऑन दिस, हमने लास्ट वाले सेशन में जब आयरन की बात की थी, वी सेड कि किसी भी खाने में विटामिन सी डाल दो तो आयरन इनटेक बढ़ जाता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट आयरन हियर। अगर आपको याद हो, मैंने हीमोग्लोबिन की बात की थी लास्ट टाइम, तो मैंने कहा था हीम जो आयरन से आता है, ग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है, अगर हीम ही नहीं होगा तो ग्लोबिन किससे जाके अटैच करेगा? सो आयरन बॉडी में इनफ होना बहुत जरूरी है प्रोटीन को आयरन से कंबाइन करने के लिए और हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए। कितना ब्यूटीफुली थिंग्स आर कनेक्टेड, अगर आपको आयरन कम है तो प्रोटीन कंबाइन नहीं करेगा, प्रोटीन कंबाइन नहीं करेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो यू नो दैट यू विल बी एनेमिक, यू विल फील एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ही कम ऑक्सीजन आपके बॉडी में ट्रैवल करेगी। So very important, you can add vitamin C to any iron rich food to increase iron, which will also help to increase protein absorption. Yes, you should use healthy fats that will again enhance the absorption of protein. And lastly, I think we touched on this, वैसे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट कोई भी कैफीन वाली ड्रिंक will be a deterrent, वो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा बॉडी में। ओके, I know a lot of children have sleep concerns when they are on the spectrum or when they are neurodiverse. So, what is the connection between protein and sleep? And as you can see, मैंने यहाँ पे 6 points लिखे हैं. So you can now understand कि प्रोटीन का कितना बड़ा रोल हो सकता है एक स्लीप साइकिल में। एंड आई थिंक आई मेंशन दिस टू यू अर्लियर दैट कोई भी स्लीप आती है, एक केमिकल मेलाटोनिन होता है जिससे विच इनेबल्स बेटर क्वालिटी ऑफ स्लीप। मेलाटोनिन बहुत कम फूड्स में डायरेक्टली मिलता है, तो प्रोटीन मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है।
इसलिए अगर रात के खाने में स्पेशली, ये एक टिप है आपके लिए, अगर रात के खाने में आप अच्छा प्रोटीन देंगे तो बेटर मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, जिससे बेटर स्लीप आएगी। ये एक टिप आप याद रख सकते हैं। नाउ, कनेक्शन क्या है प्रोटीन में और एक अच्छी स्लीप में? व्हेन द बॉडी हैज इनफ एंड सफिशिएंट प्रोटीन, रात में बार बार उठना जगना कम हो जाएगा। प्रोटीन बहुत धीरे डाइजेस्ट होता है बॉडी में, तो वो आपको बहुत देर तक फुल रखता है। सडन शुगर स्पाइक नहीं होता, तो आपको एंजाइटी फील नहीं होती, हाइपर एक्टिविटी फील नहीं होती। प्रोटीन लाइक आई सेड मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करेगा। मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग केमिकल होता है, तो आपको बेटर स्लीप आएगी। Serotonin is a chemical which keeps you happy. Again, it regulates your mood. So if your mood is calm and happy, it enables better quality of sleep. And also when your body is tired from the whole day of work, बच्चे भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत मसल का wear and tear हुआ है, मसल को भी रिकवरी चाहिए, उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए। When muscle recovery is happening well, the body will sleep well. Otherwise, there will be pain across the body. So you should know by now, अब तक, कि protein is the building block of not just the brain but of the entire body. अच्छा, ये एक चार्ट है विच आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप आपको आफ्टर द सेशन। आई विल सेंड इट सेपरेटली ऑल्सो। कीप इट इन योर फोन, टेक अ प्रिंट आउट, पुट इट ऑन योर फ्रिज। ये कुछ सिंपल टिप्स हैं टू फीड प्रोटीन टू अ पिकी ईटर। अब आप सारी टिप्स आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको टॉप 3 बताती हूँ, समथिंग दैट आई फॉलो फॉर माई ओन चिल्ड्रन, विच इज, मुझे प्रोटीन को छुपाना आ गया है खाने में। अगर मेरा बच्चा बहुत सारी चीजें जो बहुत रिच इन प्रोटीन है, जैसे मान लीजिए दाल या राजमा या छोला नहीं खाता है, तो मैं उसका पेस्ट आटे में डाल के उसको पराठा बना के दे दूंगी उसका, या फिर मैं उसका वो पेस्ट उसके डोसे में या किसी और चीज में ऐड कर दूंगी। सो यू हैव टू हाइड इट, यू हैव टू हाइड इट स्मार्टली। द सेकेंड थिंग इज, कोई भी चीज टेस्टी होगी तो नॉर्मली बच्चा खा लेगा। तो अग पीनट फॉर एग्जाम्पल इज वेरी रिच इन प्रोटीन। बहुत सारे नट्स एंड सीड्स रिच इन प्रोटीन होते हैं, चिया सीड होता है। इसको अगर आप किसी शेक में, किसी स्मूदी में, किसी प्यूरी में मिला के दे पाए तो अगेन बच्चे को नहीं पता चलेगा। एंड प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू मेक इट वेरी टेस्टी। लास्टली, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ वन पॉट मील, विच मीन्स कि सब कुछ एक चीज में डालो, मिक्स करो। जो चीज दिख रही है वो बच्चे को पसंद है, जो चीज नहीं दिख रही है प्यूरी के फॉर्म में वो छुप गई है, और एक साथ एक मील रेडी हो गई। फॉर मी, माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज ऑब्वियसली खिचड़ी। एंड वेराइटी ऑफ खिचड़ी यू कैन मेक। उसमें आपको पराठा बच्चे को पसंद है तो आपने उसमें दाल गूंद दी, या फिर पनीर गूंद दिया, या फिर आपने सोया, सोया इज एक्सट्रीमली रिच। और हम लोग, हमारे यहाँ सोए का बीन मिलता है, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ सोयाबीन। तो सोयाबीन की सब्जी बन सकती है, उसको पेस्ट करके उसकी प्यूरी यूज हो सकती है। वन मोर थिंग दैट आई विल टेल यू इज, जरूरी नहीं है कि आप एक ही खाने में उसको प्रोटीन दें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको सिर्फ पनीर दे दिया और बोला कि यही है प्रोटीन। आप दही भी दे सकते हैं, पनीर भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्रोटीन है। वो दो चीजें अपने सामने रख के खा रहा है, चांसेस ज्यादा है कि वो दोनों ही थोड़ी थोड़ी खा लेगा, तो उसको ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, आई विल शेयर दिस ऑन द ग्रुप। ओके, नाउ हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड एज पर एज? इसका एक सिंपल रूल होता है, नॉर्मली जो बच्चों में आप अप्लाई कर सकते हो, कि ऑलमोस्ट उनके वेट के बराबर, 80% ऑफ दैट वेट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा 20 किलो का है, देन आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम लाइक 15-16। इतना तो मिनिमम मुझे देना है। आइडली मैं उसको 20 ग्राम भी दे सकती हूँ, बट इतना मुझे मिनिमम देना है, 15 से 16। तो आप यहाँ पे एज देख सकते हैं कि इस एज ग्रुप में आपका बच्चा है तो उसको कितना आपको प्रोटीन देना है। इस नंबर से बहुत ज्यादा इतना अटैच मत करिए अपने आप को कि ये आपको टेंशन देने लगे, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको खाना देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि कितना प्रोटीन मोटा मोटा एक दिन में मेरे बच्चे को मिल गया। एंड अभी हम थोड़ी सी विल शेयर सम रेसिपीज विद यू, एंड आई विल शेयर सम फूड्स विद यू, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, एक दिन में 1 कटोरी दाल ले ली, 2 ग्लास दूध ले लिया, 1 ग्लास दही ले लिया, तो उसको कितना मिल गया, 1 कटोरी नट्स ले लिया, तो यू विल हैव एन आइडिया कि उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं। तो up till now, what you should have understood from the presentation is 4 things.
that protein is extremely essential for the brain and body. It is very, very important for anybody who's neurodiverse or has autism or ADHD. You have to make sure that your child is consuming protein every single day. And lastly, I will go deeper in this topic, vegetarian sources of protein. I want to break this myth in the upcoming slide later, that what can be those vegetarian sources जिससे आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं. Okay, we always speak about the 5 parts of the brain, and I think अभी हमारा शायद ये 9वां सेशन होगा, 9th सेशन है या 8th सेशन है, I don't remember, but बाय नाउ आपको ये ब्रेन का फोटो याद हो गया होगा. वी ऑलवेज टॉक अबाउट दीज मेन 5 ब्रेन पार्ट्स. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विच इज योर मैनेजर ऑफ द ब्रेन, सारा डिसीजन मेकिंग यहीं होता है, इम्पल्स कंट्रोल यहीं से कंट्रोल होता है, बच्चा फोकस यहीं से करता है, लर्निंग यहाँ से करता है. प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि वो सारे न्यूरो कनेक्शंस जो फॉर्म होते हैं, सारे न्यूरो ट्रांसमिटर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. डोपामीन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, विच बेसिकली मीन्स कि माई ईगरनेस टू लर्न टू डू समथिंग. अगर हमारा प्रोटीन कम होगा, डोपामीन कम क्रिएट होगा, लैक ऑफ फोकस होगा. वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी. हिपोकैम्पस विच इज माय मेमोरी मैनेजर ऑफ द ब्रेन, सारी मेमोरी यहाँ पे स्टोर होती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर enough protein to be there in the body so that this can function well. Thirdly, it is the part of the brain is amygdala. Amygdala हमारे emotions को process करता है, जो भी हमारा अंदर का fear, anxiety, social interaction, that is led by amygdala. Protein plays a huge role क्योंकि हमारे emotions को balance करने में help करता है, because it helps in the production of serotonin. We discussed this. Serotonin keeps you happy, calm. ये नहीं होगा तो बच्चा बहुत एंजाइटी फील करेगा, बिल्कुल काम नहीं होगा. और अगर ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, इमोशनली रेगुलेटेड नहीं फील करेगा. Cerebellum is all about the body balance, the body distance, the motor skills as well. So agar cerebellum, the role that protein plays in cerebellum is by strengthening the muscles. You know that protein is extremely important for muscle building. अगर प्रोटीन कम होगा, मसल बिल्डिंग कम होगी, तो यू विल डायरेक्टली सी एन इम्पैक्ट ऑन देयर मोटर स्किल्स, इन देयर बॉडी बैलेंस, पोस्चर एज वेल. पोस्चर भी बहुत इम्पैक्ट होता है इससे. लास्टली इंसुला इज ऑल अबाउट सेल्फ बॉडी अवेयरनेस. मुझे भूख लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, ऑल दोस थिंग्स, व्हाटएवर गोज ऑन इनसाइड माय बॉडी internally. Again, this part of the brain has a lot to do with sensory, and protein helps to manage that sensory requirement. It helps to process sensory needs. Whenever there is less protein, there will be a sensory overload. So please manage the protein requirements, because they directly impact these 5 important parts of the brain. Now, in the next 2-3 slides, I will just break this myth at a very high level, and then we will move on to recipes. ये बहुत common है. We keep hearing vegetarian foods don't have enough protein. That is a myth. It is absolutely wrong. You can get all the protein that you need just by eating vegetarian food. And the only thing that you have to keep in mind is you have to give variety. And I will tell you why. Okay, let's go through this. The point number 1 is protein is not only there in non-veg food, it is also there in our dairy foods, in nuts and seeds and dal and grain, everything. How is protein made in the body? It is made with amino acids. अब amino acids क्या होते हैं? There are 20 kinds of amino acids, out of which 9 are very important. और प्रोटीन इसी से बनता है. और ये कहाँ से मिलेंगे आपको? खाना, वैरायटी ऑफ फूड खाने से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट वैरायटी ऑफ फूड, सो दैट आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल जाएं, जिससे प्रोटीन बन जाए. नाउ there are a couple of more points which I will go deeper into in the coming slides. I am talking about amino acid. It is very important for you to understand कि 20 amino acid होते हैं, उसमें से 9 को ही essential क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 9 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी नहीं बना पाता, इसलिए हमें फूड से लेना पड़ता है. बाकी के 11 अमीनो एसिड्स बॉडी खुद बना लेती है. अब अगर 11 अमीनो एसिड बॉडी बना ले रही है और हम ये 9 खा लें खाने के साथ, तो हमारे बॉडी में बहुत इजीली प्रोटीन बन जाएगा. अगर इन 9 में से 8 ही ले पा रहे हो आप और 1 भी मिस हो रहा है, तो प्रोटीन नहीं बनेगा. प्लीज रिमेंबर. और इसका एक सिंपल थंब रूल है, प्लीज ईट वैरायटी.
ये शुरू में मैंने ये बोला, बच्चों को रिपीट फूड जो उनको पसंद है वही खाने की आदत होती है, अनलेस वो फूड एक कंप्लीट प्रोटीन फूड। कुछ कुछ फूड को आप बोलते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट प्रोटीन फूड होता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हैं। अ, अगर मान लीजिए ये उसका फेवरेट खाना नहीं है और कुछ और है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं मीट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको वैरायटी दी जाए फूड की। जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल्स। हमस छोले से बनता है, छोले का पेस्ट होता है। तो छोला होल व्हीट मतलब रोटी या पराठा, अम, चपाती, दही, दाल, चावल, पीनट चटनी एंड पोहा, ये सब कॉम्बिनेशंस किसी रीजन से बने हैं। सत्तू ड्रिंक, किसी भी चीज का आप सत्तू बना लें, उसमें जैगरी डाल दें, ऑल दीज थिंग्स इन कॉम्बिनेशन विल गिव यू द 9 essential अमीनो एसिड्स। ओके, नाउ दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट मेंशन्ड, अगर आप एक बारी अपने, आप लोग फोन पे होंगे, अपनी स्लाइड को थोड़ा बड़ा करके देखें, कितना इजी है। आपने एक बच्चे को एक कटोरी दाल दी, वो एक कटोरी दाल से उसको 7 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अब आप मानिए आपका बच्चा 4-6 साल का है, उसको मान लीजिए 15 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए दिन में। आपने 2 बार भी उस बच्चे को दाल दे दी, सुबह और शाम, या कभी छोला कभी दाल, कभी राजमा कभी दाल, कुछ भी, कितना सिंपल हो गया, उसके दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट वहीं पे मीट हो गया। नेक्स्ट, चना दाल, 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सोय चंक्स, आप सोय चंक मत दीजिए, हमारे यहाँ सोय बीन आती है, 1/4 कप देना है बस। इमेजिन, इतना सा छोटी सी कटोरी। पीनट, हाथ भर के 10-15 मूंगफली कोई भी बच्चा खा लेगा। तो जस्ट लुक एट हाउ इजी, एक बच्चा अगर दिन में एक बार दही ले रहा है, एक बार दूध ले रहा है, वहीं से उसको 7 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो प्लीज हैव अ लुक कि कितना इजी है। अगर आपने एक कटोरी दाल के साथ एक रोटी दे दी तो 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया। यही चीज आपने दिन में 2 बार कर दी तो 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। तो प्लीज सी, हो सकता है आपको बस लगता हो कि आपके बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है या आपको भी प्रोटीन की कमी है, बट एक्चुअली है नहीं। इफ यू लुक एट दिस चार्ट एंड इफ यू लुक एट द डाइट दैट यू फॉलो एट होम, यू विल नोटिस कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो रहा होगा। एंड इफ नॉट, तो बहुत इजी है मीट करना। ओके, बिफोर आई एंड, two more questions. There are how many essential amino acids? Yeah, there are 9 essential amino acids. What is the hack to increase protein absorption? किस चीज को किस चीज के साथ खाएं तो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है? हम ग्रेन को किसी भी राजमा छोले के साथ खाएं, हम किसी भी ग्रेन को किसी डेयरी आइटम के साथ खाएं, या हम कोई भी कार्ब्स जैसे चावल को डेयरी के साथ खाएं, इन तीनों में से कौन से ऑप्शन से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा मीट हो सकता है? यस, पॉइंट 1। ओके, वेरी गुड। आई विल स्टॉप शेयरिंग। आई विल नाउ move on to Rupali ma'am and she will take you. Rupali, can you unmute yourself? Can you now unmute? Yeah. Okay. I will share the screen. We can start off with the recipes. Okay. 1 second. Okay. I'm going to share it now. Okay. Can you see it, Rupali? Yeah, I can see it. Okay. Should I move forward? या सो जैसा मैम ने वंदिता मैम ने आपको सारा बताया, आई एम जस्ट शेयरिंग टू वेरी किड्स फ्रेंडली, किड्स फेवरेट रेसिपीज विथ यू, जिससे कि आप बहुत ही इजीली बच्चे का डेली रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन का पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। फर्स्ट इज मिक्स दाल डोसा। जैसा मैम ने बताया है कि न्यूरो डाइवर्स बच्चे मोस्टली पिकी ईटर होते हैं और उनका एक कोई फेवरेट फूड होता है, एक कोई फेवरेट दाल है, वो वही खा रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग।
अगर उनको एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलग वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स दाल्स नहीं मिलेंगी तो उनका डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। सो व्हाट इज द वे? हम मिक्स दाल डोसा बना सकते हैं, क्योंकि डोसा उनका एक फेवरेट फूड है, एक फिंगर फूड है, वो खुद भी हाथ में लेके आराम से खा सकते हैं। एंड उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें उनके बॉडी के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उनको इस डोसे से मिल जाएगा। जब हम वैरायटी ऑफ दालों को मिक्स करते हैं तो वो एक पावर हाउस हो जाता है प्रोटीन का, जो कि ब्रेन न्यूट्रिशन पहुंचाने का सबसे बेस्ट सोर्स हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दाल जो होते हैं वो एक कंप्लीट प्रोटीन मील बना देता है, जिससे कि बॉडी को एसेंशियल अमीनो एसिड्स आराम से मिल जाते हैं। मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है, ब्रेन नरिशमेंट के लिए हेल्प करता है, बच्चे को फुल रखता है, बच्चे के पेट को फुल रखता है फॉर लॉन्ग एंड टाइम, क्योंकि वो स्लो एनर्जी रिलीज करता है। तो उससे भी बच्चे का जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्टेबल रहता है, वो हाइपर एक्टिव नहीं होगा। बेटर स्लीप, रात में कई बार क्या होता है, आप रात में इसको एज अ डिनर भी दे सकते हो। रात में बच्चे कई बार भूख की वजह से उठ जाते हैं, तो वो जब एक स्लो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एक अच्छी स्लीप, प्रॉपर स्लीप भी ले पाएंगे। रिच इन आयरन एंड फाइबर होता ही है, इंप्रूव डाइजेशन को इंप्रूव करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे कि ब्रेन में अच्छे से ब्लड की सप्लाई हो पाए। सो इंग्रेडिएंट विल बी 1/4 कप मूंग दाल आप ले सकते हैं, आप चाहे तो छिलके वाली ले सकते हैं, उसमें लिटिल बिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। 1 कप मसूर दाल, रेड लेंटिन, सॉरी 1/4 कप, 1/4 कप तूर दाल जो अरहर की दाल होती है, पिजन पी, 1/4 कप उड़द दाल स्प्लिट ब्लैक ग्राम, एंड 2 टेबलस्पून राइस आप डाल सकते हैं। थोड़ा क्रिस्पीनेस भी आ जाती है डोसे में, एंड एक कार्ब का कॉम्बिनेशन बन जाता है। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड जीरा, एंड 1 इंच जिंजर, जिंजर आप ले लीजिए, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। वॉश कीजिए सारी दालों को और इनको भिगो के रख दीजिए, सोक कर दीजिए फॉर 5 to 6 आवर्स। उसको पानी निकाल के उसमें जिंजर, क्यूमिन एंड वाटर डाल के उसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए एंड उसको साइड में रख दीजिए फॉर 6 to 7 आवर, ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो। फर्मेंटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। फर्मेंटेशन से गुड बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये जो है ये डाइजेशन एंड गट हेल्थ, जो कि जनरली आप न्यूरो डाइवर्स किड्स में देखेंगे कि उनको गट इश्यूज रहते हैं। गट इश्यूज रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका डाइजेशन खराब है, इसका मतलब ये भी है कि वो जो भी खा रहे हैं उनकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो उसकी गट हेल्थ के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो एंटी न्यूट्रिएंट्स एजेंट होते हैं कुछ फूड में, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ताकि जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो पाए। तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। डाइजेस्टिव इशू को तो रिजॉल्व करते ही हैं, तो फर्मेंटेशन इज अ गुड प्रोसेस फॉर न्यूरोडाइवर्स किड। अगर आप उनको कुछ भी फर्मेंटेड चीज देते हैं दैट इज रियली गुड। तो आप उसको अब डोसे पैन को हीट कीजिए, उस पे थोड़ा सा ऑयलिंग कीजिए, बैटर डालिए और सिम फ्लेम पे उसको थोड़ी देर कुक होने दीजिए। एंड जैसे ही वो गोल्डन हो जाए आप उसको चटनी, हम लोगों ने एक फ्लेक्सी चटनी बनाई थी, बताई थी आपको, आप उसके साथ उसको सर्व करके दे सकते हैं, सांभर के साथ भी दे सकते हैं। इस एक डोसे से आपके बच्चे को 8 से 9 ग्राम प्रोटीन, मतलब आप ये सोचिए कि एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उस एक छोटे, चाहे 3 साल का बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, बड़ा बच्चा 2 डोसा खा लेगा, आराम से उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आयरन 3 to 4 mg मिलता है उसको, फाइबर 3 to 4 mg मिलता है, एंड कैल्शियम 40 mg मिलता है। सॉर्टेड, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इस एक डोसे से ही उसका आपका एक दिन का, अगर आपने उसको, और डोसा ऐसी चीज है कि आप उसको ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो, टिफिन रेसिपी भी बेस्ट है, आप लंच में भी दे सकते हैं एंड रात में डिनर टाइम में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। नेक्स्ट जो हमारी रेसिपी है दैट इज मूंग दाल फ्राइड इडली। तो इसमें भी देखिए आप काफी कुछ चीजें सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, बट फॉर्मेट चेंज है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि किड्स को फॉर्मेट चेंज दिखे। हमें पता है दाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप, अब बच्चा सिर्फ कटोरी में दाल अगर नहीं खा रहा है तो हमें उसे फॉर्मेट चेंज कर करके देना है, जिससे कि उसको लगे हम, मैं कुछ अलग खा रहा हूँ। एंड इट इज इडली डोसा, ये तो किड्स फ्रेंडली रेसिपीज हैं ही।
बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को चेंज कर देना है, जिससे कि ये एक प्रोटीन रिच मील बन जाए। सो मूंग दाल फ्राइड इडली के लिए आपको 2 कप मूंग दाल लेनी है, जिंजर 7 to 8 क्लोव्स गार्लिक के, 2 ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, 1 टीस्पून टर्मरिक, हाफ कप कर्ड दही, 1 टेबल स्पून लेमन एंड सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो मूंग दाल को ओवरनाइट सोक कर दीजिए, उसको ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक एंड सॉल्ट के साथ ग्राइंड कर लीजिए और स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसको आपको ज्यादा देर रखने की जरूरत नहीं पड़ती फर्मेंटेशन के लिए, आप आधे घंटे से 1 घंटा भी रख दोगे, दैट इज इनफ। फिर उसको में आपको कर्ड मिक्स करके बहुत अच्छे से विस्क करना है, बहुत ही अच्छे से कर दीजिए। और उसको 5 to 7 मिनट आप अच्छे से विस्क कीजिए, एंड उस बैटर को आप इडली मोल्ड्स में डाल दीजिए, एंड उसको 15 मिनट तक स्टीम कीजिए। फिर उसको जब वो हो जाए स्टीम, उनको निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखिए, उनके 4 4 पीसेस कट कीजिए, एंड फिर आप उसको पैन में उसको तेल के साथ थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसमें आप मस्टर्ड सीड, करी लीव, जिंजर, टर्मरिक, ये सारी चीजें सॉटे करके इसमें आप ये सारे इडली के जो पीसेस हैं ये डाल दीजिए, और उसको अच्छे से सॉटे करके मिक्स कर लीजिए, एंड उस पे लेमन स्क्वीज कर दीजिए, कोरिएंडर के साथ गार्निश कीजिए। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है। आप इसको टिफिन में दे सकते हैं, आप इसको रात में भी दे सकते हैं, आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक्स भी दे सकते हैं। जैसे आपने दोपहर में दाल दे दी, तो आपको लगा कि आप चलो दाल से उसको एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल गया, आपने शाम को उसको ये दे दिया या फिर रात को दे दिया, तो उसका डेली का रिक्वायरमेंट प्रोटीन का पूरा हो गया। तो इस एक इडली, सिर्फ एक इडली से आप 4 पार्ट करोगे अगर आप ये डिश बनाते हो। अदरवाइज अगर इडली देना चाहो, आप इडली भी दे सकते हो। तो ये एक इडली से उस बच्चे को 3 to 4 mg प्रोटीन मिलेगा, आयरन 4 to 5 mg मिलेगा, कैल्शियम 20 to 30 mg मिलेगा, एंड फाइबर 2 to 3 mg मिलेगा। इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता कि आप ये बनाएं और बच्चों को दें। आई एम श्योर किड वुड गोइंग टू लव इट। बहुत ही किड फेवरेट रेसिपीज हैं, जिसको कि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स का ध्यान देके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले रेसिपी बताई मिक्स दाल डोसे की, जरूरी नहीं है कि आप वही सारे दाल्स यूज करें, आप अपने पसंद की कोई भी दाल यूज कर सकते हैं। यूजुअली दाल इज वेरी गुड फॉर प्रोटीन, प्रोवाइडिंग प्रोटीन। तो आप कोई भी दाल यूज कर सकते हैं, आजकल तो मार्केट में मिक्स दाल के पैकेट ही आने लगे हैं, आप वही भिगो दीजिए। रियली इजी फॉर यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। सो मूंग दाल आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस जो है इसमें, जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसके ये हैं कि मूंग दाल लाइट टू डाइजेस्ट होती है। हमें ये पता है बहुत अच्छे से, जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि हमारी दवाइयां चल रही होती है एंटीबायोटिक्स, तो डॉक्टर जनरली सजेस्ट करते हैं कि मूंग दाल की खिचड़ी खाइए, ओनली बिकॉज कि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपके डाइजेशन पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। रिच इन प्लांट प्रोटीन का एक रिच सोर्स है। ये तीनों दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ के, उनको बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, एंड टिश्यू रिपेयर में सपोर्ट करता है, ब्रेन नरिशमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, और एनर्जी, जैसा हमने पहले भी आपको वेबिनार सेशंस में बताया है कि ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मसूर दाल जो रेड वाली होती है, रिच इन आयरन होती है, एंड वो ब्लड सर्कुलेशन, आयरन हमने जब लास्ट वाला सेशन लिया था, आपको पता है आयरन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और ब्रेन में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाए। तो रिच सोर्स ऑफ आयरन है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, एनर्जी को सपोर्ट करता है, एंड थकान थकान दूर करता है। जनरली मतलब जैसे बच्चे बहुत थके से लगते हैं या स्लो डाउन से लगते हैं, तो उसमें ये दाल जो है काफी हेल्पफुल है बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करने में, मेंटल डलनेस को सही करने में हेल्प करता है। अरहर दाल स्ट्रेंथन नर्व सिस्टम। अरहर दाल तो मोस्टली आप जैसे दोपहर में हम लोग बच्चों को खिला ही देते हैं, आप लोगों में से काफी लोग खिलाते होंगे। तो अगर आप अरहर दाल भी दे रहे हो दोपहर में, तो शाम को इन दोनों में से कोई भी एक मील आपने अगर कंबाइन कर दी, तो आपके बच्चे को प्रोटीन मिल जाएगा। तो अरहर दाल जो है वो नर्व्स को स्ट्रेंथन करती है, ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है,
सस्टेनेबल एनर्जी देती है। प्रोटीन का मेन काम यही है कि एक सस्टेनेबल एनर्जी दे ताकि बच्चा एक्टिव फील करे और उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी बॉडी है, अच्छे से वर्क कर पाए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और वात को बैलेंस करने में हेल्प करती है। दही, कर्ड, गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। हम उसको 2-3 घंटे के लिए अगर रख देते हैं तो फर्मेंट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड। नेचुरल प्रोबायोटिक है एंड नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है, अगर मॉडरेट अमाउंट में दे, ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, पूरे दिन में आप 1 कटोरी दही आराम से बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। जीरा, ये जो चार जो इंग्रेडिएंट है, जीरा, जिंजर, गार्लिक एंड देसी घी, ये जो छोटे छोटे हमारे स्पाइसेस होते हैं, जो हम ऐड करते हैं अपनी किसी भी प्रिपरेशन में या रेसिपी में, इसका सिग्निफिकेंस यही होता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं जाके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, आपकी डाइजेस्टिव अग्नि जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आप जो भी खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो जाए आराम से और आपके गट को एक सपोर्ट मिले। सो जीरा स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को, अग्नि को, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को, बॉडी अच्छे से जो भी खाना है उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए, इसके लिए काफी जरूरी है। एंड नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। जिंजर अगेन डाइजेशन को इंप्रूव करता है, इनहेंसेस ब्लड एंड ऑक्सीजन सर्कुलेशन। ये मैंने पहले भी बताया था, जिंजर जो होता है ना, वो पाथवेज बनाता है, नर्व्स के पाथवेज को थोड़ा सा खोल देता है, बड़ा बना देता है, जिससे कि ऑक्सीजन एंड ब्लड की सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी में अच्छे से हो पाए। एंड जो टॉक्सिन्स है उसको, सॉरी, मेंटल फॉग को रिलीज करने में हेल्प करता है। एंड इन्फ्लेमेशन जो होता है बॉडी में उसको भी रिड्यूस करता है। गार्लिक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जब हम लोगों ने इम्यूनिटी वाला वेबिनार सेशन लिया था तो उसमें हमने एक हैक बताया था कि अगर बच्चे के नाक के पास आप गार्लिक और अजवाइन थोड़ा सा रोस्ट करके पोटली बांध के रख देंगे तो उसका जो कंजेशन है वो क्लियर हो जाता है। तो गार्लिक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है। एंड ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है एंड टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, नर्व हेल्थ को सपोर्ट करता है। देसी घी ब्रेन टॉनिक है, मैंने आपको पहले भी वेबिनार सेशन में बताया था। बिल्कुल भी मत सोचिए, अपने बच्चे को देसी घी जरूर दीजिए एज अ ब्रेन टॉनिक, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, नर्वस सिस्टम को नरिश करने में हेल्प करता है, एक गुड फैट है, गुड फैट का सोर्स है। एंड आयुर्वेद में उसे मेधिया के नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स अ ब्रेन बूस्टिंग एजेंट। सो इट इज रियली बेनिफिशियल कि आप उसको देसी घी जरूर दें किसी भी चीज में। रिफाइंड ऑयल या कोई और ऑयल यूज करने से ज्यादा बेटर है कि आप देसी घी यूज करें। सो आई होप कि ये दोनों रेसिपी बहुत ही इजी हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में। आप ये जरूर अपने बच्चे के डाइट में ऐड कीजिए। आप जब भी बनाएं हमारे साथ फोटो शेयर कीजिएगा, हम देखेंगे कि आपका, मे बी आप अगर उसमें कुछ ट्विस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कीजिए और हमें बताइए, सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको विष्णु सर कुछ एक्टिविटीज बताएंगे दैट इज बेनिफिशियल। विष्णु सर। Thank you. Am I audible? Yeah. Thank you. By the way, it was a great topic on protein. And now we are moving to activities. So every session, in the end, we end with some activities. Have you ever wondered why? Like, why do we end with activities and why is activity so important, right? I've also repeated that. I think a lot of people maybe have joined newly, so I'm just repeating it again. Activity is basically a structured play for your body, which will bring body, mind, emotional control, connection in a child's body. That is very, very important. Again, I repeat, any movement, any structured movement, it can be any structured movement, not unstructured, not randomly playing. That also works, but to an extent. Unstructured way, right? It will not have any structured play
or movement will bring connection of body, mind, and emotions, which is very, very important for your child. Got it? Now, I think I have done yoga, I have done aerobic exercises, very interesting obstacle courses, object exercises, breathing exercises. But there is one thing I didn't touch. I thought towards the end I'll touch because it is necessary for you to go through all those exercises, then come to this, right? And this is very, very important and very interesting topic too. So I am tapping on every movement, every vertical of movement I'm tapping. I'm taking 3 best exercise, scientifically proven exercise for kids. And today's vertical we're going to talk about is martial arts. Got it? Simple martial arts. Again, in martial arts, there are a lot of different types of martial arts which can benefit the kids. But again, it all depends on the ability for kid to do it, right? So I'm keeping it very, very simple. Simple boxing, right? I'm working on that, right? So this is martial arts. 3 simple exercises, very, very simple, right? Before I move to all these 3 exercises, I will again tell you why martial arts. Martial arts is a structured play with pattern movement. If you see any movement, it has patterns. And you should follow that pattern. You cannot go off the track. So these pattern movement will help improve connections in child's brain, which is very, very important, which will lead to child's focus, memory, attention, activeness, at the same time, calmness also. Got it? Are we ready? So the first exercise, what we have is simple kata. It's very, very, very simple. Should I share screen? No. I'll just show everything right now. Yeah. So I will just push it back if you all be able to see. Okay, this is called simple kata. Now, the name is simple kata. Again, it is from a paper. It is from research papers, but it is actually punches in pattern, right? Now, you as a therapist or a mother can come up with the outline I'm giving you. This is the bracket. This is how you should do it. You can come with your different exercise on top of it, right? But ideal, I will show you how. It's very simple. I have to go back. Any movement, right? Any movement, 3, 1, 2, 3 is a movement. So ideally, close the fist like this, okay? Bring your left leg forward, punch with your right hand. Punch, you will block. First movement, punch, block, bend. 1, 2, 3, got it? Again, punch, block, bend. Punch, block, bend. Punch, block, bend. Right? It is a movement. It is a pattern if you see. That is a pattern you should follow. Now, the person who is making the child do, keep your hand here, let it punch. Put your hand like this, punch, put your hand like this. So you know there's a counter happening. So because of which the child is always focused on the opposite movement. Again, we cannot teach advanced martial arts here, right? And eventually, if the child is able to pick up, I would suggest put your child into any advanced martial art in a beginner level. Let's say when I meant any martial art, beginner level. If the child is coping up and child is finding interesting, if you see the child is able to do it in some manner, try to put. It's a very, very good exercise. Very, very good exercise for your brain. Okay, again, I'll show you. 3 pattern, you have punch, block, bend. Punch, block, bend. Got it? Now, this is one set. Now, you will have to do this for 30 seconds. 30 seconds, one set. Keep doing continuously. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This fast, you can go over 1, 2, 3, 1, 2, 3. You can go like that. But the child shouldn't stop for 30 seconds. After 30 seconds, take a break. Right? Then the next set, maybe you can modify this. You can give a left punch. Punch, punch, bend. Punch, punch, bend. Punch, punch, bend. And the punch should happen to the person standing here, to the hand. 1, 1, hit. 1, 1, hit. 1, 1, hit. Got it? So there is a, both the parties are involved in this, right? So in which, because of which the child is so focused on the other person's movement. And that is very important, right? Don't make the child do with any object. No gloves, nothing. This is not a boxing class. This is nothing. It is very simple pattern movements. It can go any movement. You can start with 1, 2 down also. Both works, right?
So that is first simple kata, simple pattern movements it is. It's known as simple kata in papers, but it is basically pattern punches. 3 exercises only, you give it 30 seconds, one set. Try to do it fast. If you want to make it more interesting, play some music, try to go even more faster, right? Try to move forward and back. Add some movement forward and back. That is very good. Got it? This is your first exercise. Got it? Everyone is clear? Give me a thumbs up at least so that we know. I cannot see. Yeah. So the no reply. I'm hoping it is clear. Okay. I'm assuming it's clear. That's your first movement. No doubts, very simple. Second exercise. This is known as controlled kicks. Controlled kicks. Why this exercise is so good? This exercise is good so that you can improve child's core function. Okay, because of which the body movement becomes more. Because of body movement becoming more, your body-mind connections become strong. There is a control over the body, right? That to get that control over the body, to reduce the hyperactiveness, to reduce the stress or restlessness in the body, the control over body is very, very important. Yoga can help, and such exercise also can help. But yoga needs patience to do it. But these are simple hacks to do it. I mean, we have shared multiple exercises. If you can follow in a month, let's say 10 of those, that is more than enough. You don't have to go to any other sort of therapy for this. This movement at home with structured time and a particular routine, this is more than enough. Got it? Second, control kick, very, very simple. You will stand. The child is here, the other person is opposite side. Right leg is up. Okay? You kick, take it back. Kick, take it back. You will not let the child keep the leg down. For 30 seconds it is. Kick. Kick should be anything. Maybe your hand, it can be a pillow, it can be any object. Got it? So you kick back. Kick back. 1 second pause after the kick. Kick back. Kick back. Kick back. Kick back. Kick back. Kick back. Got it? Then chain the leg. Same thing with the left. Got it? 2 movement. Right, left, control. So the game here should be the moment the child loses the balance, try to give some fun punishments to make the child, make them do more faster, or give some reward. I would say give some reward if they finish 30 seconds. 30 seconds is the time minimum. If 30 seconds is difficult and the child is very, very new to any sort of exercises, 10 seconds, 20 seconds is also ideal. But I don't think so they're new to exercise because you've been attending a lot of movements at this point, sessions. I'm sure that your child would have done some movement, so body is good. The agility of body should be good, right? Control kick, 30 seconds or 20 seconds. Done. That's your second exercise. Your last exercise is called bow breathe. It's again part of martial arts. It's basically ideally it is part of Kung Fu practices. From Kung Fu, it has gone to karate, then it has gone to every martial art. So it started from Kung Fu. So Kung Fu again has a different name. That started from there. The idea, so if you see any Kung Fu practice before they start, they bow like this, correct? And they do it through a breathing pattern. And that breathing pattern is to control your mind. That's all. To be stable with your breathing. If your breathing is restless, then you will also go over the place. And this particular exercise is very, very important. Now, how the breathing works here? You will stand, normal standing. You will exhale, stomach inside, hold. Let's say 5 seconds. Inhale, come back. Exhale, hold 5 to 10 seconds. Come back. Only the spine moves here. 1, 2. 1, 2. You will not bend the knee. This is bow breathing. You bow and you breathe. That's the only simple technique here. That's your third exercise. You have 1 breathing technique, 2 movement techniques from martial arts. Okay. So again, we are giving multiple options. We are giving from yoga to aerobic exercise to obstacle race to martial arts. Try everything. Maybe some particular exercise can
be a game changer for your child. Try everything, but make sure you try everything. Got it? These are the 3 exercises for the day. If any doubts, please ask me. All good, all okay? Perfect. Thank you, everyone. Okay, thank you, everybody. Thank you once again to Tata Power Trust Payout Pension Program in Nipit for this opportunity. We will see you again in a few weeks, and I shall remember to cover the topic that Vaishali asked me to. So, and Rupali ji will be sharing the recording with you all soon. Keep making these recipes, keep doing these exercises, and keep sharing feedback. Thank you. Bye bye.